بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NAN 24 نیوز HD کے ساتھ میں مریض حبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ حاجی منظور پلازا GT روڈ دینا کی پارکنگ کو ایک بار پھر ملی بھگت سے ختم کر دیا گیا۔ جڑاوالا کے معروف سیاستدان چوہدری ثناء اللہ باجوہ کی میاں حمزہ شہباز شریف سے خصوصی ملاقات۔ منجی بہادر میں ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا کی ہدایات پر ملکوال اور حالیہ میں اسسٹنٹ کمشنرز کے چینی کے خفیہ گوداموں پر چھاپے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے باوجود بھی چمبڑ اور فاضل اسٹاپ کے بیچ میں قبضہ مافیا کا راج برقرار۔ جوڑانکلا تھانہ کے قریب زمین کے تنازع پر محمد سعید کو قتل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب محمد حمزہ صالح کی ہدایات پر ڈراپ فروشی کے خلاف تحصیلدار خوشاب کی کارروائیاں جاری۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی اور MNA علی خان نے یونین کونسل ایبٹ آباد میں 14 کروڑ کی سڑکوں کی بہتری اور بحالی کی اسکیموں کا افتتاح کر دیا۔ ریسکیو 1122 ناروان ہمہ وقت مکمل مستعد اور زانفشانی کے ساتھ لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے انجینئر عدنان نواز۔ کراچی میں لیاقت آباد ڈاک خانہ کے قریب دھماکہ۔ TPO ناروال کامران ممتاز کی قیادت میں ناروال پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ناروال کے نواحی علاقہ سلطان پور افغان میں گدھے کی رسی کھولنے پر فائرنگ کر کے 2 بچوں کو قتل کرنے والے ملزمان گرفتار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، NAN 24 نیوز کی جانب سے میں ہوں راجہ جی۔ آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں شو گون برابر، انٹرٹینمنٹ سے بھرپور۔ مسکرانے کی وجہ تم ہو، جائے نہ جائے نا۔ اب بھائی نے نوی موٹر سائیکل لیتی قبرستان چل گئے، میں کہتا کدھر کہتا شاخ چیک کرنے۔ او یار یہ نوی موٹر سائیکل لئی تی رات نو پٹرول دی جگہ پانی پائی جاوے۔ ایک بندہ کہندا خیر ہے، کہندا چپ کر جا، اینوں کیڑا پتہ لگدا۔ بوم برابر۔ بلیٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو چہلم سے اپڈیٹ کریں گے، جہاں پر حاجی منظور پلازا GT روڈ دینا پر پارکنگ کو ایک بار پھر ملی بھگت سے ختم کر دیا گیا۔ ذوالفقار کیانی کی رپورٹ کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے پارکنگ کا آرڈر ملا ہوا تھا۔ اب کچھ عرصہ پارکنگ کے نام پر کام ہوتا رہا، جب کام مکمل ہو گیا تو پارکنگ کرائے پر لگ گئی۔ دوسری جانب ایک بہت بڑا پلازا ہے، اس کی بیسمنٹ سے لینٹرز کے بیم بھی توڑ دیے گئے ہیں، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جڑاوالا کے معروف سیاستدان ثناء اللہ باجوہ کی حمزہ شہباز سے خصوصی ملاقات۔ اس موقع پر حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ آپ پر مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھرپور اعتماد ہے اور آپ
आपकी पार्टी के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं, जिस पर चौधरी सनाउल्लाह बाजवा ने बतलाया कि ये मेरे लिए एजाज की बात है कि पार्टी क़यादत को मुझ पर एतमाद है। जबकि मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ ने पार्टी क़यादत की जानिब से सनाउल्लाह बाजवा को तहसील जड़ावाला में बल्दियाती इलेक्शन का टास्क भी सौंप दिया है। मंडी बहाउद्दीन से अपडेट करते चले। मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की हिदायत पर मलकवाल और फालिया में असिस्टेंट कमिश्नर्स के चीनी के गोदामों पर छापे। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं राना खुरम शहजाद। जी खुरम शहजाद, आगाह कीजिएगा। बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मनीर कलियार और असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल उस्मान गनी ने चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए क्रैकडाउन शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया ने स्पेशल ब्रांच की इतला पर पाड़ेवाली में एक मकामी गोदाम से 300 थैले चीनी बरामद करके कब्जे में लेकर गोदाम को सील कर दिया और 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए भेरा रोड पर मलकवाल में एक मकामी गोदाम से 130 थैले चीनी बरामद करके गोदाम को सील कर दिया। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जारी है और प्राइस एक्ट के तहत जुर्माने के साथ गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। मजीद कहना था डिप्टी कमिश्नर का कि हर तरफ हम छापे मार रहे हैं और आम को रिलीफ देना चाहते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना खुरम शहजाद, NAN 24 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। जी खुरम शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नाज़रीन, आपको मज़ीद टंडोला हयार से अपडेट करते चलें, जहां पर चंबड़ रोड पर आज भी कब्जा माफिया का राज बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद भी चंबड़ और फादर स्टॉप के बीच में कब्जा माफिया का राज, जबकि कब्जा खत्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आला हुक्काम ने वाज़िह तौर पर हुक्मनामा भी जारी किया है। आला हुक्काम के हुक्म के बावजूद भी चंबड़ इंतजामिया आपाशी रोड्स के साथ जमीन पर कब्जा करके तामीराती काम शुरू कर रही है और तमाम इदारे के लोग आंखें बंद करके मुकम्मल तौर पर खामोश बैठे हैं। चंबड़ रोड और गरीब शाह के हदूद के अंदर कब्जा करके तामीराती काम शुरू करने पर चंबड़ इंतजामिया की बेहसी पर आवाम परेशान। टंडोला हयार के DC वली मोहम्मद बलोच से फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जोड़ाटला थाना के करीब जमीन के तनाज़ा पर मोहम्मद सईद को कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 30 साला मोहम्मद सईद वल्द मोहम्मद मुमताज़ अपने रिश्तेदारों के हमरा ज़मीन की बचाई कर रहा था कि मोहम्मद एजाज वल्द मोहम्मद खान ने फायरिंग करके मोहम्मद सईद को कत्ल कर दिया। खुशाब के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खुशाब ने मेन बाजार में किराना स्टोर, सब्जी और फ्रूट की दुकानों को चेक किया और ग्राम फरोशी और रेट लिस्ट अवेसा न करने पर मुतअद्दिद दुकानों को 90,000 रुपये जुर्माने भी आयद किए। इस मौका पर तहसीलदार ने कहा कि किसी भी दुकानदार को मसनूई महंगाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एबटाबाद से अपडेट करते चले। एबटाबाद में 14 करोड़ सड़कों की बहाली और बेहतरी के लिए स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक अहमद गनी और MNA अली खान ने यूनियन काउंसिल में एबटाबाद में 14 करोड़ की सड़कों की बेहतरी और बहाली की स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। इन्होंने इस मौका पर अमायदीन इलाका के कॉर्नर मीटिंग से मुख्तसर खिताब भी किया और आवाम का इनकी क़यादत पर एतमाद का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौका पर इन्होंने कहा कि अब तक इलाके की तरक्याती कामों पर 16 करोड़ लगा चुके हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद तरक्याती कामों का आगाज अनकरीब होगा। जबकि इस मौका पर स्पीकर मुश्ताक गनी ने 3.5 करोड़ की लागत से पानी की स्कीम का भी ऐलान कर दिया। नारवाल से अपडेट करते चले। रेस्क्यू 1112 नारवाल हमा वक्त जांफशानी के साथ लोगों की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है। इंजीनियर अदनान नवाज। नारवाल से हमारे नुमाइंदे लिस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1112 नारवाल ने अपना औसत रिस्पांस टाइम 6.24 मिनट बरकरार रखा। रेस्क्यूअर्स की सलाहियतों को निखारने के लिए फिजिकल स्किल्स और नॉलेज टेस्ट का भी इनेकाद किया गया, जबकि जिस्मानी फिटनेस को जांचने के लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अदनान नवाज की ज़ेर निगरानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी लिया गया, जिसमें रेस्क्यूअर्स की दौड़ का भी टेस्ट लिया गया और तमाम रेस्क्यूअर्स का वजन और कद की पैमाइश भी की गई। इस मौका पर DEO रेस्क्यू 1112 ने कहा कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेने का मकसद रेस्क्यूअर्स को किसी भी नागहानी सूरत हाल में बरवक्त और बेहतर अंदाज में निपटने के लिए खुद को तैयार करना है। मज़ीद कहा कि इस तरह के रेस्क्यूअर्स का फिजिकल फिट होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर माह इस तरह के टेस्ट का इनेकाद किया जाता है ताकि रेस्क्यूअर्स की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके।
कराची से अब पेश करते चले लियाकताबाद डाकखाना के करीब धमाका। कराची से काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। धमाका रोड के साथ नाले में हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाका बहुत शदीद था। इलाका और दुकानदार धमाके से लोगों के दिल दहल गए। नाले के ऊपर लगे स्लैब छोटे छोटे टुकड़े बनकर उड़ने लगे, जबकि धमाके से लोगों में खौफ और हरास फैल गया। टीपीओ नारवाल की क़यादत में नारवाल पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अलिस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक टीपीओ नारवाल कामरान मुमताज की क़यादत में नारवाल पुलिस मनशियात फरोशों, मुजरमान इश्तहारियों और नाजायज असलहा होल्डर्स के खिलाफ सरगर्म। बदनामे ज़माना मनशियात फरोश इरफान उर्फ बाली को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 380 ग्राम चर्स बरामद कर ली, जबकि दूसरी कार्रवाई में मनशियात फरोश अमलदार को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 20 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके इन्हें पाबंदे सलासल भी कर दिया गया। इस मौका पर टीपीओ नारवाल ने कहा कि जिला नारवाल को मनशियात फरोशों, मुजरमान इश्तहारियों और नाजायज असलहा होल्डर से पाक करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नारवाल के नवाही इलाका में गधों की रस्सी खोलने पर 2 बच्चों को कत्ल करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। थाना नूरकोट की हदूद में गधे की रस्सी खोलने पर हमसाया ने फायरिंग करके 2 सगे भाइयों को शहीर खान बामर 10 साल और शहरोज खान उमर 17 साल को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में 2 भाई, वालिद वालदा और 1 मामू शामिल हैं। पुलिस ने इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत से मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।